Very good evening, everyone. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So, thank you so much for joining us today's session. I am Sampada, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, today we are going to talk about GSTR 1 resolve uncertain transactions in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topics, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into specialized in Tally software sales, services, solutions, implementations, and development. So we are here to quick overview of today's topic and key solutions of our deals. So first, we deal with Tally Prime, the best accounting software for managing your financial operation efficiently. Second, SAP Business One, a comprehensive business management software that's connects and streamline your company's process. Third, Bitrix 24, an all-in solutions offering CRM, project management, and collaborations tool. And last, fourth one is ERP View. This solution help you eliminate the needs of multiple software system and offering complete 360 degree of your organizations. So that's it. So now our speakers is available here. So Miss Tejasri and Diksha, are you here? Yes, Yes, ma'am. Yeah. Thank you so much for joining us. And Tejasri, you can start over to you for your presentation. yes, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Okay, thank you. Hello, everyone. Myself Tejashri, and I'm here to present today's webinar on GSTR 1 Resolve on certain transactions in Tally Prime. On behalf of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all of you. So let's begin with the first slide. GSTR 1 Resolve. GSTR 1 is a tax return that has to be filled by a regular dealer on GSTN portal. If you are a regular dealer, then you have to upload all the details of your outward supplies or sales transactions every month or quarter as per the turnover from the previous financial year. So GSTR 1 ये एक टैक्स रिटर्न है जो आपको हर महीने या फिर क्वार्टरली भरना पड़ता है. अगर आप रेगुलर डीलर हो और जीएसटी यूज़र हो तो आपको कंपलसरी सेल्स ट्रांजैक्शंस आपके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Managing uncertain transaction for GST compliance. Uncertain transactions give you an overall count of vouchers with GST related errors. You can drill down further from the section to view all the uncertain details and correct them. Even if you have hundreds of transactions, you can easily find and fix a particular error. Refer to refer to the resolve uncertain transaction section to know more. अब टैली में आप जो भी सेल ट्रांजैक्शंस मेंटेन करते हो उसमें जो भी एरर्स आते हैं वो ट्रांजैक्शंस आपको GSTR 1 के अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में शो करते हैं. यहाँ पे आपको इजीली एरर्स अपलोड करने में जो भी एरर्स आपको दिख रहे हैं शो करते हैं वो देखने के लिए आप इजीली अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में जा सकते हो और इजीली आपके एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हो. नॉट रेलेवेंट फॉर दिस रिटर्न gives you an overall count of the all vouchers that are not required to fill in GSTR 1 in the selected period. This includes transactions of other registration returns or return periods and also includes non-GST transactions such as payroll, inventory, and order vouchers and transactions that were consequently excluded by you. So same as per अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस आपको GSTR 1 में नॉन रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस का भी रिपोर्ट शो करता है जो कि आपको GSTR 1 में नहीं लगने वाले वाउचर्स दिखाता है जिसमें पेरोल, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स, नॉन GST वाउचर्स इंक्लूड होते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. It's over to you, Diksha, for live demo. Thank you. I am Diksha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. As per introduction, today topic is GSTR 1 uncertain transaction. Now we are see how to solve uncertain transaction in Tally Prime. So let's start practical demo. So जैसे कि तेजस्वी ने बताया GSTR 1 जो सेल्स रिटर्न्स फाइल्स के लिए होता है जिसमें हम लोगों को सेल्स का समरी मिलता है
तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी एंट्रीज हम लोग पास करते हैं उसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, जो हम लोगों को बताता है कि कौन से एंट्रीज रिटर्न फाइल्स में दिख रही है या फिर रिटर्न फाइल होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली। तो जो नो नहीं होने वाली है ना, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रिटर्न फाइलिंग्स के अंदर, जो एरर्स में गई हुई है। तो उसके लिए एक डमी कंपनी मैंने ओपन किया हुआ है, GSTR 1। ऑलरेडी जो एंट्रीज मैंने पास किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे सेल्स का जो हम लोगों ने 4 एंट्रीज की हुई है, जो आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। ये चारों एंट्री अभी रिटर्न फाइल्स में GSTR 1 में दिखनी चाहिए, राइट। तो इसका रिपोर्ट GSTR 1 में हम लोग चेक करते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी GST रिपोर्ट, देन GSTR 1। GSTR 1 के अंदर जाने के बाद एंट्रीज जो है मंथ वाइज देखना है, ईयर वाइज देखना है, वो पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मेरा एंट्री जनवरी का था, तो मैं जनवरी मंथ यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ऊपर वाउचर्स के अंदर टोटल वाउचर मेरा 4 दिख रहा है, यानी एंट्री 4 हुई है। तो कौन से एंट्रीज रिटर्न फाइलिंग्स में गई हुई है और कौन से एंट्रीज रिटर्न फाइलिंग में नहीं है, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको GSTR 1 अभी जो नया वर्जन है 5.1 का, उसके अंदर डिटेल में पता चलेगा। इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में आपका एक ही एंट्री बता रहा है, एंड देन रेडी फॉर अपलोड, वही सेम एंट्री आपका रिटर्न फाइल में जाएगा। देन नॉट अपलोडेड, जो एंट्री आपका अपलोड नहीं हुआ है, सेम एंट्री आपका जो अपलोड नहीं हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक आज देख रहे हैं, अनसर्टन ट्रांजेक्शन करेक्शंस नीडेड। ये ब्रैकेट में आपको बताया गया है, आपका इसको करेक्शन करना है। एंट्री चेक कर लेते हैं, कौन से 3 एंट्रीज हैं। एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा ट्रांजैक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन का मीनिंग है, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस आपके मिसिंग है, वही अपने को चेक करना है। जैसे कि उसका बाइफरकेशन आपको नीचे एंट्रीज का दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री जो दिख रहा है वो GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। सेकेंड एंट्री जो है जिसका HSN इनवैलिड बता रहे हैं या फिर मिसमैच बता रहे हैं। और थर्ड जो एंट्री है वो वाउचर नंबर इनकरेक्शन बता रहा है, मतलब वाउचर नंबर में भी करेक्ट नहीं डाला रहेगा, या फिर डाला है तो वो करेक्ट कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन विद इनकम्प्लीट मिसमैच, इसको करने के लिए आपको एंट्री ओपन करने की जरूरत नहीं है, बैक जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली GSTR 1 के रिपोर्ट के अंदर ही एंट्रीज सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, सॉरी। ट्रांजैक्शन विद इनकम्प्लीट मिसमैच के अंदर आपको एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल पता चलेगा, मेरा कौन सा एंट्री है, कौन सा वाउचर नंबर है, फिर कौन सा अमाउंट है और एरर क्या है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट जो है GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो अनुराग एंड एसोसिएट कंपनी का एंट्री ओपन करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर प्रेस करोगे तो आपका एंट्री इजीली ओपन हो जाएगा। तो GST डिटेल्स नहीं डाले हुए हैं, अभी GST डिटेल नहीं डाला है, तो आप चेक करोगे पहले तो पार्टी, पार्टी के अंदर आप चेक करो। यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने डाला हुआ है, टाइप रेगुलर है, पर GST नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपका जो एंट्री है वो ऑटो सॉल्व हो जाएगा। इसका GST नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, यही कॉपी करके GST डिटेल्स के अंदर आपको मेंशन करना है। तो ये GST डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अभी यहाँ पे आपका GST कब से अप्लाई है या फिर इफेक्टिव डेट क्या है, अनुराग एंड एसोसिएट कंपनी का GST नंबर कब से है, वो यहाँ पे डेट आपको डालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे करंट डेट ऑफ कंपनी, तो मैं यहाँ पे करंट डेट ऑफ कंपनी सिलेक्ट करती हूँ। आप आपका जो कंपनी का डेट है वो वहां पे मेंशन करना है, या फिर सामने वाले पार्टी का जो डेट है वो आपको वहां पे मेंशन करना है। लेजर सेव हो गया है। अभी यहाँ पे सेकेंड विंडो ओपन हुआ है पार्टी डिटेल्स का।
आप यहाँ पे चेक करेंगे तो पार्टी डिटेल तो बराबर डाला हुआ है, पर जो लेजर के अंदर जीएसटीएन नंबर डाला हुआ है वो यहाँ पे आया नहीं है। तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अननोन करके ऊपर उसको रेगुलर करवा दिया, और आपका जो लेजर के अंदर जीएसटीएन नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरा एंट्री था 1 जनवरी का अनुराग एंड एसोसिएट कंपनी का वाउचर नंबर 12021। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ई वे बिल मुझे नहीं बनाना, तो मैं इसके नो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो जीएसटी 1 का रिपोर्ट है वो वैसे का वैसा ही है स्क्रीन मेरा। और मैं जीएसटी 1 के रिपोर्ट के अंदर जाके एंट्री सॉल्व करके फिर से जीएसटी 1 के रिपोर्ट पे ही आई हूँ। तो मुझे ये बार बार रिपोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो मेरा जो एंट्री अनुराग एसोसिएट का था वो निकल गया है, क्योंकि एरर मेरा सॉल्व हो चुका है। देन सेकेंड एरर जो है वो HSN इज इनवैलिड मिसमैच और नॉट स्पेसिफाई वाउचर ऐसे करके आ रहा है, और वाउचर नंबर इनकरेक्ट आ रहा है। तो हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, HSN नंबर कहाँ पे नहीं डाला है। अभी HSN जो है वो आइटम के अंदर रहेगा, तो डेफिनेटली हम लोग आइटम चेक करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर चेक करेंगे। राइट हैंड साइड पे HSN का पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, जो आपको चेक कर सकते हैं आप। HSN डाला नहीं है वो यहाँ पे बता रहे हैं नॉट स्पेसिफाई इनवैलिड। स्पेसिफाई डिटेल्स HSN में डाल देती हूँ। HSN कब से अप्लाई हुआ है वो डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेरा आइटम मैंने सेव कर लिया। अभी चेक करते हैं ये सॉल्व हुआ है कि नहीं। क्रांति हार्डवेयर इनवॉइस नहीं बनाना है। तो HSN का जो एरर था वो मेरा सॉल्व हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 2 एंट्री फिर से पेंडिंग है, जो वाउचर नंबर इनकरेक्ट है करके बता रहे हैं। तो HSN का तो सॉल्व कर दिया क्रांति हार्डवेयर का, तो पेंडिंग जो है वो वाउचर नंबर का है। फिर से एंट्री ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि एंट्री इनवॉइस नंबर में क्या मिस्टेक आ रही है। अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरा ब्लर स्क्रीन आपको एंट्री का दिख रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने एंट्री पास किया हुआ है AK/120 022 0 राइट। और सेम मैंने यहाँ पे वाउचर डाला हुआ है नंबर, जो कि स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है। ये एंट्री मैं सेव कर लेती हूँ। इनवॉइस नो। अभी ये जो एरर है ना सेकेंड एंट्री का देखते हैं, दमन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी AK/120 222 021 डाला हुआ है। चेक करते हैं डिटेल्स में क्या डाला हुआ है। न्यू रेफरेंस बैकग्राउंड में दिख रहा है AK/120 222 021। सेम वाउचर नंबर यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो अभी ये सेम है, मेरा एंट्री भी रिफ्रेश हो गया, मैंने एंटर एंटर करके उसको सेव कर लिया, वो रिफ्रेश हो गया, फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके लिए टैली के अंदर एक शॉर्टकट दिया हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, येलो लाइन दिख रहा है, मैंने एंट्री पे क्लिक किया हुआ है तो मुझे येलो लाइन दिख रहा है। जब आप स्पेस बार दबाओगे तो वो एंट्री सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद
जस्ट ओके, ब्लू लाइन आ गया यानी वो सिलेक्ट हो गया है। आपको क्या करना है, सेट एज एक्सेप्ट एज इज करना है। ओके, दिस एक्सेप्शन विल बी एक्सेप्टेड इंक्लूडेड इन रिटर्न्स। तो ये वाउचर नंबर का इशू है, इसमें जीएसटी रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने एंट्री लेवल के अंदर दोनों जगह पे सेम वाउचर नंबर ऑलरेडी डाल दिया है। आप इसको यस कर सकते हैं, वो एंट्री ऑटोमेटिक रीसेव हो जाता है। ओके, सेम अभी क्रांति हार्डवेयर का मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ और एक्सेप्ट एज इज फॉर्मेट में उसको सेव कर देती हूँ, तो ये एंट्री मेरा निकल गया। अभी रिपोर्ट चेक करते हैं। जीएसटीआर 1 का जो मैं रिपोर्ट देख रही हूँ जनवरी का, जिसमें टोटल वाउचर मेरे 4 थे, इंक्लूडेड रिटर्न में मेरे 4 वाउचर गए हुए हैं और रेडी अपलोड के लिए भी 4 आए हुए हैं और अनसर्टन ट्रांजैक्शंस मेरे 0 हो चुके हैं। तो ये अनसर्टन ट्रांजैक्शंस यानी क्या होते हैं, जो भी एंट्रीज आप पास करते हो वो एंट्रीज आपको सही तरीके से सेव करनी है और आपको वो एंट्री अपलोड ऑटोमेटिक वहां पे जीएसटीआर 1 में दिखेगी। एनीबडी हैव एनी डाउट और क्वेरी? किसी को डाउट है या क्वेरी कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू संपदा मैम, थैंक यू तेजश्री। Yeah, thank you very much, Tejasri and Diksha. It was a nice presentation and a knowledgeable session. So, before wind up this session, I would like to discuss on today's offer. So, we have a Tally ERP 9 to Tally Prime offer that is new today itself, and we have a exclusive offer that's now live, and it's something you for definitely you don't want to miss. From 7th February to March 6th 25, if you renew your Tally ERP 9 customer, so you will receive the TSS at an amazing 50% off the on a MRP. You can have to half of your price. So here new final points is keep in mind. This is a limited offer and specifically designed to provide an exceptional value to a customer. It's an opportunity to enhance your Tally experience used to, and we encourage to you take advantage of this offer. While it's a renew now, you enjoy your benefit, your Tally ERP 9 and Tally Prime benefits of to significantly changes in your saving time. So thank you so much for your attendance and okay, it's thank you so much for your attendance and we will keep you connect with one-to-one. Our business manager, we will connect you shortly. If you have any query and if you have any related discount and any related offer related more information, you can connect our YouTube channel and our key accounting management managers. Okay. Yeah. Thank you so much.